So this is the question which we are going to solve. We see a delta over here in between, and actually this delta can be replaced. It means that ये 26, ये 26, ये 26 cancel हो जाएगा, और उसकी जगह पे we can put in this, these three resistances. Okay. So this is, let's say, my RA. This is my RB. This is my RC. So in terms of RA, RB, RC, what is the formula of RAB? You know that. What is the formula for RAC, and what is the formula for RBC? Okay. So in our case, we have RA equals to 26, which is also equals to RB, which is also equals to RC. So RA, RB, RC बराबर हैं तीनों. Now what is RAB? It is, remember, RA into RB plus RB into RC plus RC into RA divided by RC. जो यहाँ AB है तो यहाँ C आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए what it is going to be. It is going to be 26 common 26 plus 26 plus 26 divided by 26. तो देखिए ये 26 इंटू 26, 26 इंटू 26, 26 इंटू 26 हो जाएगा. तो मैंने 26 कॉमन ले लिया, फिर वो 26 प्लस 26 प्लस 26 हो गया, और RC इज ऑल्सो 26. तो ये 26 विल कैंसिल विद दिस 26. अब ये बताएं ये कितना हो गया. सो 78 ohms. तो RAB 78 ohm और विद सिमेट्री, क्योंकि बाकी सब भी तो सेम है. आप RBC का फॉर्मूला लगाएं या AC का फॉर्मूला लगाएं, इट विल ऑल्सो बी 78. तो अब हमारे पास जो नया सर्किट सॉल्व होके आया वो हो गया ये. आप देखें, it would be something like this. So all RAB, this will be equals to RBC and this will be equals to RAC. All are same because यहाँ से हम सिमेट्री लगा सकते हैं. तो अब जो नया सर्किट आएगा वो होगा ये. This is 36, this is 30, this is 78. Okay. This is 78, this is 78. यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है. This is of 12, this is 6, this is 15, and this is 0.6. Done. Fine. Now what you can do is you can take these two. First of all, take these two. It can be reduced, and then take this thing in parallel with this 78. तो आप मुझे सॉल्व करके बताएं 15.6 taken in parallel with 78, what is going to be. तो थोड़ा सा इजी कर लेते हैं अभी के लिए, बिकॉज मैं केवल अप्रोच आप तक कन्वे करना चाहता हूँ. तो लेट अस टेक दिस एज 6 ओनली. वी डोंट टेक इट एज 0.6, इसको 6 ले लेते हैं तो कि ताकि कैलकुलेशंस में हमें ज़्यादा परेशानी ना हो. क्लासेस ऑन रिकॉर्ड, गलती कैलकुलेशन में नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज 15 plus 6 and this would become what? 21. 21 parallel with 78. तो आप बताएं क्या वैल्यू आएगी 21 पैरेलल विद 78 की. टेल मी. ओके, आर यू श्योर? 21 parallel with 78, the value should be less than 78 anyways. So 21 parallel with 78 का मतलब हुआ you have to take 1 upon 21, you have to take 1 upon 78, and this will be equal to 1 upon R equivalent. Done? अब कैलकुलेट करना चाहिए आपको. तो 21 की टेबल में इनका आप LCM लें तो क्या आने वाला है? Can anyone tell me? Anyone good at maths? 21 twice is 42, and then twice is 78. तो देखें इन दोनों का कुछ कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको, और इट इज गोइंग टू बी 78 इंटू 2 करेंगे तो इट वुड बी 178, 156. और if you divide 156 by 21, what are you going to get? I think 156 by 21. Do that. Where are the calculator? I can know it.
256 divided by 21. So इसका आपने 1/21 plus 16.556, no doubt. Okay, so iska R equivalent would be nearly equals to whatever you say, 16.556. Yeah, we can also work in decimals. There is no such obligation. So ये पूरा सर्किट अब छोटा सा सर्किट में तब्दील हो गया. अब जो नया सर्किट आएगा वो कुछ ऐसा होगा. You have 36, you have 30 there, ये 78 ही है. ये जो है it has turned to 16.556. Okay, यहाँ we still have a 78, इस जगह we still have a 12, and over here we have 6. Fine. Now you can see that this particular thing is working as a delta. यहाँ देखें, एक नोड ये रही, एक नोड ये रही, एक नोड ये रही. तो आप इसे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? अब ये पूरा देखिए, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे. एक यहाँ लेंगे इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, और एक पूरा आ जाएगा इस पॉइंट पे. फाइन. तो अभी ये है आपका लेट्स से आर ए, ये है आपका आर बी, और ये है आपका आर सी, लेट्स से. तो ये आर ए बी हो गया, ठीक है. ये वाला आर बी सी हो जाएगा, और ये आर ए सी हो जाएगा. सो दिस वन विल बी योर आर ए सी, दिस इज योर आर ए बी, एंड दिस विल बी योर आर बी सी. ये जो रेड में बनाया है हमने, ठीक है, और ये जो ब्लैक में है दैट विल गो आउट. बट यहाँ पे हमें लिखना होगा that R A is equals to 30 all in ohms, RB is equals to 78 ohms, and RC is equals to 16.56 ohms. Okay. Now tell me what is going to be RAB. So it is going to be quite calculation intensive. So it is numerator हम सबका same रख सकते हैं. So it is let me just take, पहले होगा 30 into 78 plus then you have B R A R B, फिर R B R C which is 78 into 16.56 plus R C R A which is 30 into 16.56, and that should be, it is coming out to be 4128.48. and you have to, because if you have to calculate RAB तो किससे डिवाइड देते हैं? RC से. So we will divide it by 16.56 and you will get 249.3. तो RAB आ गया हमारे पास. अब इसी तरीके से you can find RBC, और उसमें न्यूमरेटर would be same, 4128.48 divided by AB है तो BC है तो A से डिवाइड देंगे, you would divide it by 30. So इसको अगर मैं डिवाइड दूं 30 से, let me take it, 4128.48 to be divided by 30, it would be nearly 616 exactly. And what about RAC or RCA भी बोलते हैं लोग उसे, 4128.48 divided by divided by, I have to do 78, correct? So then 4128.48 divided by 78, it is 4128.48 divided by 78, correct? Are you sure it is 249 or it is 52.92? Yes, 52.929 nearly. तो ये 3 ohms में आ गया हमारे पास. और अब दोबारा से इस सर्किट को रिड्यूस कर लिया आपने, तो स्टेप्स देखते जाएं. पहला स्टेप था इस सर्किट से यहाँ आना, दूसरा स्टेप था इस सर्किट से यहाँ पहुंचना. अब जो नया सर्किट मिलेगा हमें, इट वुड बी दिस. यू हैव 36 ohms इम्पीडेंस, फिर इसके साथ में ही RAB, AB की वैल्यू है 249.3 ओम का इम्पीडेंस, फिर इसके साथ में यहाँ देखें इट वुड बी 70
8 ओम इम्पीडेंस और फिर उसके साथ में पैरेलल में होगा RBC which is 137.61. Someone is in. ठीक है, 137.61 और फिर एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा देयर, इट वुड बी इक्वल्स टू RAC which is 52.92 और कुछ बचा, yes we still have this 12 and this 6 ohms here. Now it is pretty easy, इसको आप पैरेलल में लेकर सॉल्व कर सकते हैं. So इन दो को पैरेलल में सॉल्व कीजिए और इन दो को पैरेलल में सॉल्व कीजिए, मुझे वैल्यू बताइए व्हाट इट इज गोइंग टू बी. तो 1/36 प्लस 1/249.3 और फिर उसका 1 इनवर्स ले लेना. सो जो फाइनल सर्किट आना चाहिए इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. यू हैव अ रेजिस्टेंस, यू हैव अनदर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ और एक ये रहा. इतना हो जाना चाहिए. तो बताएं मुझे, ये तो वैल्यू है ठीक है 52.92, बट ये जो आएगा ये 36 इन पैरेलल विद 249.3 हो क्या आएगा, और ये वाला जो है 70 इन पैरेलल विद 137.61 आएगा. तो दिस इज 12, दिस इज 6. टेल मी व्हाट दिस इज. सो इट्स गोइंग टू बी 1/36 प्लस 1/249.3. it is this 1 divided by answer exactly 31.457 आ रहा है. तो अब 45 या 44 whatever, कुछ पॉइंट्स में मेरे साथ मिस्टेक हो सकती होगी. और इसका बताएं 1/78 और 1/137 का. तो इट इज 1/78 प्लस 1/137.61 and 1 divided by answer. It is 49.78 something. Please check, am I right or not? ठीक है. सो कैलकुलेशन इंटेंसिव तो होगा ही, क्योंकि 8 से 10 नंबर का ये सवाल हो सकता है. दिस इज गोइंग टू बी कैलकुलेशन इंटेंसिव, बट it's easy and it's directly formula putting and it's scoring as well. अब क्या करें, आगे कैसे फॉरवर्ड करना चाहिए हमें. either you solve some deltas or you solve some stars. तो हम स्टार को डिकम्पोज करते आ रहे हैं. तो यहाँ पे मुझे एक और स्टार दिख गया. ओके, और इस स्टार को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस, देन वी विल ओनली लेफ्ट विद डेल्टास. फाइन. तो अब देखें, अब यहाँ पे अगर मैं इसे RA बोल रहा हूँ, so my RA is 31.45, RB is 12 and RC is 49.78. तो my RA is this, RB तो यहाँ दोबारा से लिखते हैं, RA is 31.45, RB is equals to 12 and RC is equals to 49.78. तो ये वाला जो हो जाएगा what it will be, it would be RAB. ये जो होगा it would be RBC और ये जो होगा वो RAC हो जाएगा. Done? रिमेंबर दैट ये बीच वाले के लिए है, इसका 52 से कोई लेना देना नहीं है. जो स्टार था वो हमने ये सेंट्रल स्टार लिया था. नाउ यू कैलकुलेट व्हाट इट इज गोइंग टू बी RAB, यानी ये वाली चीज व्हाट इट बी. तो आप जानते हैं कि न्यूमरेटर तो सबका सेम होने वाला है. 31.45 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 49.78 प्लस 49.78 इंटू 31.45. तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर 2540.341 डिवाइडेड बाय RC करूंगा विच इज डिवाइडेड बाय 12 किया तो मुझे मिल गया RAB विच इज 201.6. ओके, 201.6 इज RAB. सिमिलरली हाँ वही तो किया है, देखो 49.780 लिखा है और देखो आंसर भी मेरा डिफरेंट आ रहा है. 2540.341 डिवाइडेड बाय 49.78. हाँ देखो आंसर भी मेरा ये थोड़ी है, 51.03 है. ओके, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक. ओके, देन व्हाट वुड बी RBC? It would be 2540.341 divided by RA 31.45. तो अब 2540.341 को 31.45 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 80.77. Okay, quickly go, rush, get the calculator and tell me what would be RAC. 2540.341 divided by AC है ना.
इसका आंसर पता है, इस पेपर में कहीं लिखा हुआ है लेकिन काट दिया था। करेक्ट, 211.69। सो वी हैव गॉट आर ए बी बी सी एंड सी ए। अब आर ए बी आर बी सी आर सी ए को आपको बस प्लेस करना है सही जगह पे। तो देखें आर ए बी हमारा यहाँ था, तो ये पॉइंट है, वी हैव गॉट आर ए बी देयर, इसकी वैल्यू है, आप जानते हैं क्या है। देन वी हैव आर बी सी, और एक हमारे पास आर सी ए है, और एक और वैल्यू है यहाँ पे 6 ओम्स की। ओके, और ये जो वैल्यू है वो आर बी सी है, इट इज 80.77 नाउ। आर ए सी है ये, विच इज 211.69, और आर ए बी है, हमने निकाला था 51.03। लेकिन एक और चीज भी बाकी है, देखें इस सर्किट में ये वाला तो रह गया ना 52.92, तो ये 52.92 इज इन पैरेलल विथ दिस रेजिस्टेंस 211.69। तो अब आसान हो गया हमारे लिए, नाउ इट्स प्रीटी इजी। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं केवल इसमें, एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद अनदर रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस यहाँ। तो इन दो को पैरेलल में लीजिए और इन दो को पैरेलल में लीजिए, यहाँ और यहाँ लिख दीजिए। तो बताइए अगर इन दो को पैरेलल में लेंगे तो व्हाट वुड बी द वैल्यू। तो लेट मी जस्ट टेक इट, 1 डिवाइडेड बाय 211.69 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 52.92 and 1 divided by answer. This should be 42.33, and अगर 80.77 और 6 को लें तो 1 divided by 6 plus 80.77, 1 divided by 80.77, 1 divided by answer. It is correct 5.58 all in ohms, ठीक है, सब ohms में चल रहा है। और ये वैल्यू कितनी है, what this is 03। नाउ इट इज इजी, अब तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है कि यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए इस नोड का हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ करंट वगैरह डिवाइड होगा नहीं, तो ये दोनों ले लें सीरीज में। इन दोनों को सीरीज में लेके आपके पास क्या वैल्यू आई बताएं। ये तो हो गया 51.03। अब ये दोनों सीरीज में ले लिया आपने, तो 42.33 प्लस 5.58, तो इट इज 47.91 47.91 आ गया। अब आपको आर इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करना है। तो बताइए क्या होगा, 47.91 ये दोनों ऐड कर दिए मैंने, और 51.03। सो 1 डिवाइडेड बाय आंसर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 51.03 एंड 1 डिवाइडेड बाय आंसर। तो बताएं क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओनली, ये कितनी वैल्यू आ रही है, nearly 24.710. So this complex circuit can just be replaced via a single resistance. आप देखें, but you need to put in efforts, and that's why I say that this is easy, but calculation intensive, but it is really easy. आप देखें over there, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर इस जगह से यहाँ पहुँचे, और फिर इस जगह से यहाँ पहुँचे, और फिर इस जगह से यहाँ पहुँचे। तो it is like मैं इन क्लास सॉल्व कर रहा हूँ तो आई एम टेकिंग लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है। यू विल आल्सो हैव टू यूज लॉट मेनी बी शीट्स। तो जब PHM 504 का CT1 हो तो शीट्स ज़्यादा लाइएगा, ठीक है, अगर स्कोर ज़्यादा लाना है तो। मतलब डिमांड है, इजी है, लेकिन डिमांड तो है ना। अब आप डायरेक्टली आंसर तो नहीं लिख सकते, बताना तो पड़ेगा हाउ यू कैलकुलेट। और अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो सही आंसर है तो नंबर मिल सकते हैं, और अगर गलत है तो फिर जीरो ही मिलेगा। खैर, तो आपने देखा कि एक इमेज मैंने आपको दिखाई थी, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस पर, अरे कहाँ गया ये वाला सवाल, एक और सवाल है, बट ये हम करेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पॉज कर देता हूँ।